السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، الہی آمین ثم آمین۔ سورۃ یوسف آیا نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ فیصلے کرتے ہیں، بے سمجھی کے معاملات میں الجھ جاتے ہیں۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا، اسے بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، یاد ہے نا تجھے؟ اب تو ان باتوں پر غم نہ کر۔ اب ہو سکتا ہے اس بھائی نے بھی اپنے اوپر ظلم و ستم بتایا، جو اولاد اپنے باپ کو اتنے برے برے القابات سے نواز رہی تھی، آپ تو بانولے ہو گئے، آپ تو سٹھیا گئے ہیں، آپ تو گمراہ ہو گئے ہیں۔ کوئی اولاد اپنے باپ والدین کے لیے اس طرح کے ورڈ بولے تو یہ تو کیا کاؤنٹ ہوتا ہے؟ بس تمیزی کاؤنٹ ہوتی ہے نا، بد اخلاقی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو اس بد اخلاق اولاد نے باپ کو اتنا تنگ کیا ہوا تھا تو کوئی بھائی نہیں کہ چھوٹا بنیامین بھی ان کے کہتے شر سے محفوظ ہو، تو یقیناً اس نے بھی ہو سکتا ہے آ کے بتایا ہوگا کہ آپ کے پیچھے میرے پہ بھی انہوں نے بڑا بڑا ظلم کیا۔ اب کیا کہتے ہیں؟ غم نہ کر، غم نہ کر، یعنی غم جو ہے وہ انسان کو، غم کرنے سے انسان کے اندر کیا ہے؟ نیگیٹو ریاکشن پیدا ہوتا ہے نا، اور غم نہ کرنے سے، معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے پازیٹیو ریاکشن پیدا ہوتا ہے، پروڈکٹیو کاموں میں زیادہ انوالو ہو جاتا ہے انسان۔ ایسا جو کہتا ہے نا، جو آپ کے بس میں بات نہیں تھی آپ اس کو کہتے ہیں ایسے جھاڑ دیں، جیسے ہمارے بڑے کہتے تھے چل ہو، اس کی جتنی عقل تھی اس نے اتنی بات کرنی تھی نا۔ ہماری بڑی ماشاء اللہ، ہمارے گھر میں میری والدہ، ان کی ایک عادت تھی ماشاء اللہ، اور ہمیں غصہ آتا تھا، فلاں آ کے اس طرح کر گیا، ہم کہتے چل ہو بیٹا، جن جو کرے وہ بھرے۔ تو ہمارے پاس یہ چلو والا ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، اماں ایسے چلو کہہ دیا آپ نے، وہ آپ کو گھر میں آ کے ہمارے اوپر اس طرح کی باتیں کر گئے تو ہم کہتے چلو۔ کوئی ہماری کزن، امی کی کزن، وہ آئی ہیں اور اپنی سلائی کٹائی کے لیے، امی جان ماشاء اللہ ماہر تھی اس معاملے میں، ان سے امی روٹی چھوڑ کے ان کی کٹائی کروا کے سارا کچھ ان کو سمجھایا، تو پھر وہ نیکسٹ میٹنگ میں آتی ہیں کہ آپا کہتے تھے میری امی جان کو، آپا جیسے آپ نے کٹائی کی تھی وہ تو نہیں سوٹیبل تھی، پھر میں نے جیسے کیا نا اس میں پھر یہ دیکھیں کیسا ڈیزائن بنا، اور ہمیں تب چڑھ رہی تھی کہ ہماری ماں نے ہمارے لیے روٹی پکانی چھوڑی اور ان کے لیے کام کیا، اور ہم غصہ ہو رہے ہیں بعد میں، امی آپ نے بڑے نرمی سے ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا، وہ کہتی چلو بیٹا، اس کو اتنا ہی ضرورت تھا جس نے کیا، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ تو یہ صفتیں ہمارے اندر بھی آنی چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب چلو کرو، غم نہ کر، یہ لوگ جو کرتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام بھائیوں کا سامان لدوانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا، پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ اب دیکھیں جا رہے ہیں، پیچھے سے آواز لگی، او تم لوگ چور ہو، ٹھہر جاؤ ذرا۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ سرکاری ملازمہ نے کہا بادشاہ کا پیمانہ ہم کو نہیں ملتا، اور ان کے جمعدار نے کہا جو شخص لا کر دے گا، یعنی جو ان کا جو ذمہ دار انسان تھا، اس نے جو کہا جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے ایک ہم اونٹ بھر غلہ اس کو انعام میں دیں گے، اور اس کا میں ذمہ دیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے، نہ ہم چوریاں کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامان میں یہ چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے۔
क्योंकि मिस्र की सजा तो उन पर नहीं लागू हो सकती थी ना, मिस्र की सजा लागू हो भी नहीं सकती थी क्योंकि किसी और मुल्क में रह रहे थे और किसी और मुल्क के बाशिंदों को आप अपनी सजाओं से नहीं पकड़ सकते, अब उन्हीं के मुल्क की सजा होनी थी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अच्छा अगर तुम झूठ निकले तो फिर क्या होगी सजा? तो उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में तो ये है जो चोरी करे वही पकड़ा जाए, वही उसकी सजा में रखा जाए। अब उन्होंने कहा उसकी सजा उसके जिसके सामान से निकले वही अपनी सजा में रख लिया, हमारे यहाँ तो ऐसे ही जालिमों को सजा देने का तरीका है। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से पहले उनकी खुर्जियों की तलाशी लेनी शुरू की। स्टार्ट कहाँ से किया? वो 10 भाइयों से। फिर अपने भाई की खुर्जी से गुमशुदा चीज मिल गई जो उन्होंने प्लान करके उनके अंदर छुपवा दी थी। इस तरह हमने यूसुफ की तायीद अपनी तदबीर से की। अच्छे अच्छे नेक आइडियाज हमें भी आते हैं, जब हम नेक कामों की तरफ लगते हैं ना, हमें अच्छे अच्छे आइडियाज आते होते हैं, अल्लाह की तायीद होती है, अल्लाह डाल रहे होते हैं दिल में। और जो बुरे ख्यालात आ रहे होते हैं उसको फिर आउज़ बिल्लाह पढ़ के झटक देना चाहिए क्योंकि वो शैतान की तरफ से होते हैं। और अल्लाह ताला कहते हैं हाँ ये सूझ हमने सुझाई थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये सूझ हमने सुझाई थी। उसका ये काम ना था कि बादशाह के दीन यानी मिस्र की शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता, बगैर किसी वजह के उनको ठहरा लेता। जैसे विजिटर हमारे पास आते हैं हमारे पेरेंट्स में से या बहन भाइयों में से, वो उतनी देर ही रह सकते हैं एज अ विजिटर, यहाँ पे रेजिडेंशियल के तौर पे नहीं रह सकते, तो वो नहीं ठहरा सकते थे। तो उन्होंने कोई तदबीर करनी थी, ये तदबीर अल्लाह ने सुझाई। इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे, हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद करते हैं। और हर इल्म रखने वाला ऐसा होता है जो हर साहिब इल्म से बालातर है। व फौqa कुल्ली दी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला होता है और सबसे बड़ा इल्म वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद है। और इसमें मूसा अलैहिस्सलाम ने भी एक पॉइंट पे अपने आप को समझा था शायद कि दुनिया में सबसे ज्यादा मैं इल्म वाला हूँ, तो अल्लाह ताला ने उनको ट्रायल में डाल दिया था। कहा नहीं जाओ खिज़र अलैहिस्सलाम पे, मेरा बंदा तुझसे ज्यादा जानता, जिनको अल्लाह ने अपना इल्म गैबी इल्म दिया हुआ था। अब ऐसे फिर इल्म पे जो हमें अल्लाह की तरफ से ताईदन इल्म मिल जाता है या दीन की समझ वाला इल्म, तो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला का वादा है ना, जो जिसके साथ अल्लाह अपनी भलाई का इरादा रखता है उसको दीन की खूब समझ दे देता है। ये अल्लाह की मोहब्बत होती है, जिसको अच्छी अच्छी नेक ताबीरें और नेक आइडियाज आते रहते हैं कि अच्छा मैं अपने काम को कैसे बेहतर से बेहतरीन कर सकता हूँ। समटाइम आपने अपने रिवीजन का रोटा रखना हो ना, तो अल्लाह ताला एक आइडियाज देते हैं, ये जो मैं साथी को सुनाती हूँ वो इनफ नहीं है, मुझे इसके ऊपर भी कोई काम करना होगा तब मेरा पक्का होगा। फिर मैं किसको ढूंढूं, किसको तलाश करूं, दिमाग चलता है। अच्छा कौन है जो जिनके अंदर वो कहते हैं ना इतनी सलाहियत है कि वो इसको जज्ब कर सकता है, मेरी बात को सुन सकता है, मुझे तसल्ली से टाइम दे सकता है। तो ये कहाँ से आते हैं आइडियाज? अल्लाह की तरफ से आते हैं। जिस काम के पीछे हम लग जाते हैं ना, अल्लाह पाक उसको सुझा देते हैं। अब क्या हुआ, अब देखें, एक तरफ या अय्युहल अजीज या अय्युहल अजीज या अय्युहल अजीज कह रहे हैं, अब मुंह पे खड़े होकर क्या कहते हैं, कालू इन यसरिक फक़द सरका अखुल्लाहु मिन क़ब्ल। अगर इसने चोरी की है ना, कोई भाई नहीं, इसके बड़े भाई ने भी चोरी की थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी ये बात सुनकर पी गए। कैसा बड़ा सब्र था। आपके मुंह पे कह दे आपको कोई झूठी बात और आप पी जाए, उसको रिएक्शन भी ना दे, ये बहुत बड़े इंतहा वाले सब्र की बात है। हकीकत इन पर ना खोली, बस जेरे लब इतना कहकर रह गए कि बड़े ही तुम बुरे लोग हो, मेरे मुंह पर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ये दिल में उन्होंने कहा, जो इसकी हकीकत बस अल्लाह ही जानता है। फिर वल्लाहु आलमु बिमा तसिफून, अल्लाह खूब जानता है जो तुम घड़ रहे हो। इससे पता चलता है जो अंदर का सब्र है ना, डीप सब्र, बहुत सारी परेशानियां, बीमारियों और आफतों से बचा देता है। तो ये सब्र इंसान के पास होना चाहिए। बाज़ुकात होता है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मेरी नई नई शादी हुई, मैं अपने ससुराल में गई तो कोई गांव, और ज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली। मेरे जेठ भाई अल्लाह ताला उनको करबटे जन्नत दे, वो मेरे हाथ पे सर पे हाथ फेर के कहते थे कि तू मेरी छोटी बहनों की तरह है, अगर अफजल ने तेरे साथ कोई भी ऊंच नीच की तो मैं हाजिर हूँ तेरी फाइट करने के लिए। इस तरह उनका माशाल्लाह मामला था। और घर वालों को पता था कि मेरा लिहाज रखते हैं, मुझे इज्जत देते हैं। कोई चीज़ टूट गई, अनहोनी चीज़ टूट गई या कोई चीज़ खराब हो गई है तो वो अचानक से मेरे नाम ला गई। वो दीवा से टूट गई थी और भाईजान चुप कर गया और मैं बैठी देख रही हूँ, अल्लाह ये कहाँ से हुआ था, ये कब हुआ था। फिर मैं पी गई,
चलो कोई बात नहीं, इनकी लड़ाई बाचे जाए। तो अब आज पता चलता है कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला ने फितरी तौर पे कुछ आपको दी रखी होती हैं क्वालिटीज जो आपके अंदर होती हैं, उसको दोबारा से हमें संभालने की ज़रूरत है। लेकिन आज समझते हैं हम अब वो सब्र नहीं है हमारे अंदर, जो उस वक्त सब्र था ना, अब बेसब्रे थोड़े से हो गए हैं, क्योंकि जिस फास्ट फूड के ज़माने में हम जी रहे हैं ना, और तेज जिंदगी के अंदर जी रहे हैं, उसमें बाज़ औक़ात होता है कि फौरन दिल करता है कि हकीकत बयान कर दो जो है। तो ये फरासत अल्लाह की अता होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये फरासत अल्लाह ने दी कि वो पी गए इस बात को। उन्होंने कहा इसे ए सरदार, यानी ए अजीज़े मिस्र। अब यहाँ पे एक सेकंड पहले वो मुंह पे एक किस्म की बड़ी गाली दे के हटे हैं, इल्जाम दे के हटे हैं। अब साथ ही वो स्टेटस के हिसाब से अब कहते हैं या अजीज़े मिस्र, इसका बाप बहुत बुरा आदमी है। इसका बाप, हमारा बाप नहीं, इसका बाप। इसकी जगह आप हमसे किसी को रख लीजिए, हम आपको बड़े ही नेक नफ्स इंसान समझते हैं। दो मुलाकातों में समझ गए कि ये इंसान फितरी तौर पे बहुत ही पारसा और इस्लाह रखने वाला, एहसान करने वाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम का अल्लाह की पनाह, दूसरे शख्स को मैं कैसे रख सकता हूँ? जिसके पास हमने अपना माल पाया, मैं तो उसी को रखूंगा, वरना तो मैं ज़ालिमों में से शुमार हो जाऊंगा। यानी ये कैसे हो सकता है? जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। इनमें से जो सबसे बड़ा था बोला, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे खुदा के नाम पर क्या अहद व पैमान ले चुके हैं? अगर इससे पहले यूसुफ के मामले में जो ज्यादती तुम कर चुके वो भी तुमको मालूम है। अब तो मैं यहाँ हरगिज ना जाऊंगा। ये वही भाई है जिसने वो कत्ल करने से मना किया था। उनके दिल में थोड़ी खुदा खौफी थी। और यूसुफ के मामले में जो तुम ज्यादती कर चुके हो तुमको मालूम है। अब मैं तो यहाँ से हरगिज ना जाऊंगा। और कहा जाता उसका नाम यहूदा था, और यहूदी है तो उन्हीं के नाम से प्रमोशन में आई आगे। जब तक मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दे दें, फिर ये कि अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला फरमा दे, वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम जाकर अपने वालिद से कहो, अब्बा जान आपके साहबजादे ने चोरी की है, हमने उसे चोरी करते देखा तो नहीं है, जो कुछ हमें मालूम है वही हम बयान कर रहे हैं, और गैब का मालिक तो निगहबानी तो हम नहीं कर सकते थे। बस आप उस बस्ती के लोगों से चाहे पूछ लीजिए जहाँ हम थे, उस काफिले से दरियाफ्त कर लीजिए जिसके साथ हम आए हैं। हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं, व इन्ना लसादिक़ून। एतमाद गंवाने के बाद इंसान को इस तरह की कस्में देनी पड़ती हैं। पहले वो अपना एतमाद गंवा चुके थे ना एक भाई के मामले में, और वही खदशा जो याकूब अलैहिस्सलाम को पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए था, अब दोबारा लाहक हो गया और वो पूरा भी हो गया। बाज़ औक़ात होता है कि इंसान अपने खदशात जो दूसरों पे जाहिर करता है वो भी पड़ जाते हैं। जिस तरह कहते हैं ना बुरे ख्वाब पड़ जाते हैं, इस तरह खदशात भी पड़ जाते हैं। तो अपने खदशों को भी छुपाना चाहिए। बाज़ औक़ात खदशा आ रहा होता है, बुरे बुरे ख्यालात आ रहे होते हैं, कभी आप उसको डिस्कस करते हैं तो लगता है कि कोई चीज़ होगी। तो ऐसे में वो खदशात को भी छुपाना चाहिए। जो खदशा उन्होंने अपना जाहिर किया था वो खदशा फिर दोबारा, अब वहां तो जान के उन्होंने किया था ना, अपनी मनचाही जरूरत के हिसाब से किया था, यहाँ पे तो अल्लाह की तरफ से हो गया। अब वो याकूब अलैहिस्सलाम के लिए तो दोनों ये जो केस है वो तो अनहोने हो गए ना। उन्होंने क्या कहा, बल क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील। कि अल्लाह ताला ने, बाप ने दास्तान सुनकर कहा, तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी बात को फिर सहल बना दिया। अच्छा, इस पर फिर मैं सब्र ही करूंगा, बखूबी सब्र करूंगा। सब्रुन जमील होता है जिसमें कोई जजा फजा ना हो, कोई शिकायत, कोई गिला ना हो, ऐसा सब्र है ये सब्रुन जमील। तो हमें भी सब्रुन जमील मांगते रहना चाहिए, खाली सब्र नहीं। कि सब्रुन जमील अता फरमाए, जिसमें कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई ऐसे नहीं। और हम सब्र तो करते हैं लेकिन साथ सुना भी देते हैं। उन्होंने सब्रुन जमील किया, बखूबी करूंगा। क्या दूर नहीं है कि अल्लाह उन सबको मुझसे मिला दे। अब एक हुस्न ज़न रख रहे हैं, अल्लाह ताला पे अच्छा गुमान रखना भी एक मोमिन की निशानी होती है। हमेशा हर हाल में जितनी भी डाउनफॉल आ जाए, अल्लाह ताला पे हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए कि इसमें भी अल्लाह कोई खैर निकाल देगा। अब उन्होंने इस खैर के लिए क्या सोचा कि जहाँ एक गुम हुआ था दूसरा भी लॉस्ट हो गया, और तीसरा वैसे रह गया, बड़ा तो वैसे ही रह गया था ना पीछे, कि मैं नहीं जाने वाला जब तक कि अब ये सारा मामला हल नहीं हो जाता। अब 3 बेटों से हाथ धो बैठे हैं किस्म का। तो कहा कि अब वही नहीं कि अल्लाह ताला मुझे इन सबको जमा कर देगा। एकदम फिर क्या हुआ, तवल्ला अन्हुम, फिर मुंह मोड़ लिया उनसे।
उनसे मुंह फेर लिया, और आना भी चाहिए। ऐसे लोगों से मुंह फेर लेना चाहिए जो बार बार आपको हर्ट करने का जरिया बनते हैं और बार बार अपनी तीखी बातों से आपको तकलीफ देते हैं, तुर्श बातों से, चाहे वो औलाद हो या कोई और हो। माँ बाप के दिल भी खट्टे हो जाते हैं ऐसे बच्चों से जो आपको कहते हैं सिर्फ अपनी जुबान की तुर्शी की नोक पे रखते हैं हर वक्त। आपकी सारी याकूब अलैहिस्सलाम से बढ़ के एक नबी होने के नाते उनके अखलाक मामले को कोई इंसान आम पहुंच सकता है? औलाद कदर नहीं कर रही, औलाद कदर नहीं कर रही है, घर की मुर्गी दाल बराबर, और उन पे बुरे बुरे इल्काबात और बुरे बुरे इल्जामात और बुरे बुरे नाम दे रही है उनको। फिर उन्होंने मुंह मोड़ लिया उनसे, फर्म हो गया उनसे, और वो काला या असफा अला यूसुफ, कहने लगे दिल ही दिल में गम से घटा जा रहा है, दिल मेरा गम से घुटा जा रहा है इसकी, और उनकी आंखें मेरी सफेद पड़ गई हैं, यानी रो रो के आंखों की बिनाई भी चली गई है। बेटों ने कहा खुदा रहा, अब तो आप यूसुफ को याद किए जाते हैं, यहाँ तक कि लगता है कि आप इस गम में घुल ही जाएंगे। यानी वो उनको कुछ भी नहीं कहा, उनसे मुंह फेर के बैठे हैं, फिर भी वो देखे ताना देने में उन्होंने देर नहीं लगाई। तो वो क्या जवाब देते हैं आगे से, कहा मैं तुमसे तो कुछ नहीं कहता, इन्नमा अश्कु बस्ती व हुस्नी इल्लल्लाह, मैं तो अपने रब के सामने अपनी परेशानी को रो रहा हूँ। तो गम मुसीबत पे रोना हक है, ये रहमत है। वो दिल नरम नहीं होता जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकलता। अल्लाह के प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा बेटा इब्राहिम जब फौत होते हैं तो आप रो रहे थे, तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि अल्लाह के नबी आप भी रोते हैं? तो हमने कहा हाँ, मेरा दिल उस गम में अशकबार है और आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन जुबान तो वही कहेगी जो मेरा रब चाहता है। तो रोना कोई नहीं है, रोना चाहिए, बल्कि रोना आफियत वाला है, लेकिन उसमें जजा फजा करना और चीखना चिल्लाना और उसमें वो कहते हैं बातें कर करके रोना और ववेला करना, ये हराम है, ये मना है। उन्होंने कहा इन्नमा अश्कु बस्ती व हुस्नी इल्लल्लाह। हमें भी बहुत सारे गम परेशानियां अनहोनियां मिल जाती है ना, तो ये आयत हमारा विर्द बन जाए। बाज़ लोग आपकी वैल्यू को पहचान नहीं रहते, आपकी दयानतदारी को देख नहीं रहे होते, आपकी सदाकत पे अपनी गलत कार्यों की वजह से ईमान नहीं रखना चाहते, तो फिर क्या कहें नमाज को बस्ती उसने सही उमर की बात आती है कि जब आप कई दफा नमाज पढ़ते थे और ये आयतें पढ़ते थे और इतना हिचकियों में रोते थे कि पीछे 2-3 सफ़ों में उनकी हिचकियां सुनाई देती थी। इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इल्लल्लाह। और नमाज में रोना भी हक है। जब हम अपनी नमाजों में ऐसी आयत तिलावत करें तो डेप्थ में उतर जाएं, किसी अपने गम और किसी अपनी लाचारगी को याद करके तो अल्लाह के सामने रोएं कि अल्लाह ताला सारे मेरे गम सारे हम तेरे सामने खुले हुए, तेरे सामने मैं रो रहा हूँ। वअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। और जैसे अल्लाह से मैं वाकिफ हूँ तुम नहीं हो। बेटों को बस इतना जवाब दिया, तुम्हें क्या पता कि मैं जो रो रहा हूँ मैं किस गम में रो रहा हूँ। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इस दुआ के साथ कि इलाही हम पर सब्र उंडेल दे, हमें सब्र जमील करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें हसद और मुनाफ़क़त से बचा। या अल्लाह हासदीन के हसद से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह तो हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और नेक तदबीरें सुझा। या अल्लाह तेरी जिसको मदद मिल जाए वो कभी गुमराह नहीं हो सकता, वो कभी भी लॉस्ट नहीं हो सकता। या अल्लाह तो हमें अपनी मदद अता फरमा। या अल्लाह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की तरह हमें भी सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह ऐसा सब्र कि जिसमें कभी कोई जज़ा फ़ज़ा ना हो, कभी कोई गिला शिकवा ना हो, कभी कोई। या अल्लाह हमें भी तो अपने हम और गम में सिर्फ़ और सिर्फ अपने सामने फ़रियाद करने वाला बना दे, ना कि लोगों के सामने। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इल्लल्लाह। या अल्लाह हमें भी इस आयत का मज़दाक बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thanks for watching.